Good morning students, we are learning electoral politics. In our previous video, we have covered the topic like what kind of electoral system has been adopted in our country, what is the procedure and who can take part in elections. Today we will learn about who can cast their vote in elections. This too you all know that universal adult franchise has been adopted in our country. That means the one who is 18 years old or more than 18 years of age, then he or she can cast the vote irrespective of caste, creed, color, gender or religion. Now, before elections, a list of people who are eligible for voting is prepared by the Election Commission of India. Election Commission, students, is an independent body who is responsible for regulating elections in our country. This Election Commission prepares a list. Who are the people who will cast vote this time in election? Who are eligible, what new names has been added और what old names has been deducted. क्योंकि बेटा पॉपुलेशन मैंने आपको पहले ही बताया था एक स्टेबल फिनोमिना नहीं है. पॉपुलेशन चेंज टाइम्स टू टाइम एंड डेमोग्राफिक डिवीजन ऑल्सो चेंज. डेमोग्राफिक डिवीजन का क्या मतलब है? एज ग्रुप वो चेंज हो जाता है. आपके 5 साल में कितने लोगों ने बर्थ ले लिया होगा? इफ़ सपोज 2019 के इलेक्शन में अ पर्सन नेम्ड ए वॉज नॉट एलिजिबल टू कास्ट द वोट, उसकी 18 ईयर्स एज नहीं होगी, बट अगले 5 साल बाद 2019 के बाद जब इलेक्शंस आपके कंडक्ट होंगे वो 5 साल अब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा. तो क्या है, वो उस क्राइटेरिया में आ गया. तो नाउ इट इज़ नीडेड कि उसका नेम वोटर्स लिस्ट में मेंशन कर दिया जाए. इफ सपोज पर्सन बी in election of 2019 he was there but now if he is not there, इसका मतलब या तो वो देश से बाहर चले गए, उन्होंने अपनी कंट्री को छोड़ दिया, या उनकी डेथ हो गई, तो उनका नेम रिमूव करना होगा ना. सो एवरी आफ्टर 5 years certain names has to be added, certain names has to be removed. This procedure is done by election commission and this fresh list which is prepared before election is known as voter list. इसमें एरिया वाइज नेम मेंशन होता है दैट फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया हु आर द पीपल हु विल कास्ट द वोट इन इलेक्शंस. Children, you know very well that India is a diverse country. Here, rich, poor, highly educated, not educated, elite class, lower class, middle class, everyone is there. Every religion, caste, creed, color, gender, but everyone has the right to cast the vote. If you are educated, नॉट एजुकेटेड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यू विल कास्ट द वोट. तो एक बस मैंने आपको क्लॉज बताया था दैट यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. People of India are not allowed to cast the vote. Difference between citizen and people I have told you. The one who is having the citizenship is known as people. If someone day before election came from USA and if he claims that he want to cast the vote, then we won't allow him to cast the vote because वो इंडिया का नहीं है, वो फॉरनर है. तो हमारे यहाँ उन्हीं को वोट देने का राइट है जो इंडिया के सिटीजन्स हैं. यू कैन सी दिस इमेज इज displaying that this type of voter list has to be prepared. Electoral roll इसको बोलते हैं. Here a picture of that particular person, name, address, age, everything is mentioned. And ये है बेटा आपकी list who can vote or cast vote in elections. Voters list तो हमने पढ़ ली. Now अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे हु विल फाइट इन इलेक्शन और हु विल कंटेस्ट इन इलेक्शन. तो व्हाट आर द मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट अ पर्सन मस्ट पजेस इफ़ यू वांट टू टेक पार्ट इन इलेक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको भारत का नागरिक होना चाहिए. एज शुड बी मिनिमम 25 ईयर्स. आपने वोटिंग के लिए देखा कि मिनिमम एज इज़ 18 ईयर्स, बट टू फाइट इन एन इलेक्शन मिनिमम एज इज़ 25 ईयर्स. मोर तो मैक्सिमम का नो क्राइटेरिया इज देयर बट मिनिमम 25. देयर आर restrictions also on people with criminal records but those are extreme cases. That means if someone has committed a crime which is very serious crime, the person who has committed murders and those who against whom some serious criminal cases has been filed, वो जेल में रह के आ चुके हैं, वो बेटा आपके एलिजिबल नहीं होंगे इलेक्शंस में
फाइट करने के लिए। द कैंडिडेट हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। अ फॉर्म इज टू बी देयर, they have to fill that particular form. A security deposit, some amount is there that has to be deposited to the election commission before contesting in an election. Also, a legal declaration has to be made with details of pending criminal cases against the candidate, assets and liabilities of the candidate and educational qualification of the candidate. अब ये क्या है? लीगल डिक्लेरेशन का मतलब होता है बेटा कि ये आप खुद डिक्लेयर कर रहे हो एंड इट इज़ लीगल, कोई झूठ आप इसमें नहीं बोल रहे हो. इट कैन बी कंसिडर अंडर क्रिमिनल केस ऑल्सो. अगर कुछ भी आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो ये इलीगल माना जाएगा. आपको क्या डिटेल सेंड करनी है, क्या इज देयर एनी क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट यू. देखो बच्चों, दो टाइप के केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस. सिविल केसेस का मीन्स है जो आपके ये ज़मीन जायदाद को लेके होते हैं, ये सिविल केसेस होते हैं. क्रिमिनल केसेस मीन्स होते हैं जो आपने जिसमें सीरियस क्राइम कमिट किया हो, स्पेशली मर्डर वगैरह जो होते हैं वो क्रिमिनल केसेस में आते हैं. इफ़ यू आर बीन इन्वॉल्व इन एनी टेररिस्ट एक्टिविटी, वो सब क्रिमिनल केसेस में आते हैं. लेकिन ये जो सिविल केसेस होते हैं ये सिर्फ प्रॉपर्टी के होते हैं, ये इनको नहीं देखा जाता है, क्रिमिनल केसेस को देखा जाता है. एसेट्स एंड लायबिलिटी, आपकी कितनी जायदाद है, आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, हाउ मच बैंक बैलेंस यू आर हैविंग. लायबिलिटीज़, आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं. एंड योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑल्सो, दैट आप कितनी डिग्री हैं आपके पास, टिल वॉट till you are mature, what kind of education you have taken, what are the specific degrees that you have gained. लेकिन इसमें एक चीज़ जो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है. दैट मीन्स अगर आपको कंट्री में इलेक्शन लड़ना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 12th पास आउट होना चाहिए, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए. तभी आपने देखा है कि लोकसभा में इलिटरेट मिनिस्टर्स आर ऑल्सो देयर. इट शुड बी मैंडेटरी बट फॉर नाउ इट इज़ नॉट मैंडेटरी. एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आप डिटेल्स तो दोगे बट कहीं पे भी उसको क्राइटेरिया में ये नहीं है कि अगर आप एजुकेशन आपका नहीं है या फिर आप लिटरेट नहीं हो तो देन यू कैन नॉट टेक पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, अब एक टॉपिक आता है आपका इलेक्शन कैंपेन. ये क्या होता है इलेक्शन कैंपेन? Election campaign in India takes place 2 weeks starting from the declaration of the final list of candidates contesting the elections concluding 48 hours before the date of polling. मतलब क्या होता है, इलेक्शन होने से पहले लगभग 2 weeks बिफोर जब पूरा डिक्लेरेशन हो जाता है लिस्ट का दैट दीज आर द कैंडिडेट हु विल टेक पार्ट इन इलेक्शन, तब आपका इलेक्शन कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाती है. ड्यूरिंग दिस कैंपेन कैंडिडेट्स रीच आउट टू द वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स होल्ड इलेक्शन मीटिंग्स एंड रैलीज फॉर इन्फॉर्मिंग द वोटर्स अबाउट द पॉलिसीज़. अब क्या होता है इलेक्शन कैंपेन के पूरे के टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, जो आपके लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, दे ट्राई टू रीच टू द वोटर्स. व्हाई दे ट्राई टू रीच टू द वोटर्स? बिकॉज दे हैव टू इम्प्रेस द वोटर्स, दे हैव टू टेक द वोटर्स इन देयर कॉन्फिडेंस कि गिव वोट टू माई पार्टी. इफ़ यू विल गिव वोट टू माई पार्टी देन आई विल डू दिस थिंग फॉर यू. और सपोज इफ़ आई थिंक दैट कि मुझे एग्रीकल्चर हमारा सेक्टर ख़राब है, अगर मुझे पीजेंट्स को अपने कॉन्फिडेंस में लेना है देन आई विल just deliver promises to the peasants only that if I will come to power I will do this for you, I will do this for you. तो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए इलेक्शन कैंपेन की जाती है to deliver this message कि what kind of policies and thought process we are having and after coming to in power हम उनको कैसे fulfill करेंगे. The main purpose of election is to give people chance to choose the representative, the government and policies they prefer. Some successful slogans that were used during campaigns are गरीबी हटाओ. ये एक बहुत फेमस स्लोगन है और ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूज़ किया गया था, स्पेशली इंदिरा गांधी जी इन द ईयर 1971. अब बेटा ये जो स्लोगन्स होते हैं ना ये बहुत हद तक आपके मैसेज को कन्वे कर देते हैं कि आपका मोटिव क्या है. इफ़ सपोज इंदिरा गांधी बिफोर इलेक्शन इज सेइंग कि गरीबी हटाओ, तो हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी इस थॉट प्रोसेस को लेके चल रही हैं कि आफ्टर कमिंग टू पावर इंदिरा गांधी जी वर्क करेंगी टू इराडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री.
वो हटाएंगी, रिड्यूस करेंगी, खत्म